حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہ میں فروخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ ازارکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا۔ پوچھا اے بادشاہ کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا اے بادشاہ غم وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچ و تاب وہ کھاتا ہے جس کو انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر و ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ازارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرو۔ ازارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالی غضبناک ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے جبار میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس علیہ السلام میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ ہوئے کہ اب حضرت علیہ السلام کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ازارکا کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت علیہ السلام کے قتل کے ارادہ سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیے گا بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔
खुदा ने वही फरमाई कि तुम उससे अलहदा रहो, मुझे उसके साथ छोड़ दो। मुझे अपनी इज्जत की कसम है कि मैं अपना हुक्म उस पर जारी करूंगा और तुम्हारी बात और अपनी रिसालत सच कर दिखाऊंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, पालने वाले मेरी एक हाजत है। खुदा ने फरमाया, बयान करो, मैं तुम्हारी हाजत बर लाऊंगा। अर्ज की, जब तक मैं ना अर्ज करूं उन पर बारिश ना हो। खुदा ने फरमाया, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, उनके शहर तबाह हो जाएंगे और लोग भूखे मर जाएंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कुछ हो मेरी तो यही इल्तिजा है। खुदा ने फरमाया, अच्छा मंजूर है, जब तक तुम दुआ ना करोगे उनके लिए बारिश ना होगी और मैं सबसे ज्यादा अपने अहद को पूरा करने का सजावार हूँ। ये सुनकर इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को आगाह किया उससे कि जो कुछ खुदा से दुआ की थी और जो कुछ जवाब मिला था, और फरमाया, ए मेरे दोस्तों, इस शहर से दूसरे शहरों में चले जाओ। वो 20 अशखास थे, सब दूसरे शहरों में मुतफर्रक हो गए और तमाम शहरों में ये मशहूर हो गया कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदा से ऐसी दुआ की है। इदरीस अलैहिस्सलाम खुद भी एक बुलंद पहाड़ के गार में जाकर पोशीदा हो गए। खुदा ने एक फरिश्ता को उन पर मुवक्किल फरमाया जो रोजाना शाम को उनके पास खाना लाया करे। वो हजरत हर रोज दिन को रोजा रखते थे, शाम को फरिश्ता उनके लिए खाना लाता था। उधर खुदा ने उस बादशाह जब्बार की हुकूमत बर्बाद कर दी। वो कत्ल कर दिया गया, उसका शहर मिटा दिया गया और उसकी औरत का गोश्त कुत्तों ने खाया, इस सबब से कि उस मोमिन पर उसने जुल्म किया था। फिर उस शहर में एक दूसरा जालिम सरकशी करने वाला पैदा हुआ। इसी तरह 20 साल गुजरे कि एक कतरा पानी का ना बरसा। उस शहर वाले सख्त तकलीफों अजियत में मुब्तला हो गए। उनके हालात बहुत खराब हो गए। वो दूसरे दूर दूर तक के शहरों से सामाने खुराक लाने लगे। जब उनका हाल बहुत तबाह हो गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये बला जो हम पर नाजिल हुई है इस सबब से है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की है। खुदा से दुआ की है कि जब तक वो ना चाहें आसमान से बारिश ना हो, और वो हमसे पोशीदा हो गए हैं। उनका पता हमको नहीं मालूम, लेकिन खुदा हमारे ऊपर उनसे बहुत ज्यादा मेहरबान है। लिहाजा हमको चाहिए कि खुदा की बारगाह में तौबा करें कि इस शहर और इसके गिरदो नवा में पानी बरसाए। गर्ज के उन्होंने मोटे कपड़े पहने और अपने सरों पर खाक डाली और खाक पर खड़े होकर खुदा की बारगाह में गिरिया वजारी और तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। खुदा को उन पर रहम आया और इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि तुम्हारे शहर वाले मुझसे तौबा व इस्तग़फ़ार और फरियादो ज़ारसी कर रहे हैं, और मैं खुदाए रहमानो रहीम और तौबा का कबूल करने वाला हूँ। गुनाहों को मुआफ कर देता हूँ। मैंने उन पर रहम किया और उनके बारिश के सवाल को पूरा करने में कोई अम्र मुझे माने नहीं है, मगर ये कि तुमने मुझसे सवाल किया था कि जब तक तुम दुआ ना करो बारिश ना करूँगा। लिहाजा ए इदरीस अलैहिस्सलाम मुझसे तलब करो ताकि मैं उन पर बारिश भेजूं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, नहीं पालने वाले, मैं तो नहीं सवाल करता। फिर वही हुई कि बारिश की दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फिर इनकार किया तो खुदा ने उस फरिश्ता को वही की जो उन पर खाना ले जाने के लिए मुकर्रर था कि इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ताम ना ले जाए। जब शाम हो गई और खाना नहीं पहुंचा तो इदरीस अलैहिस्सलाम भूख से बेचैन हुए, लेकिन सब्र किया। दूसरे रोज फिर खाना नहीं आया तो उनकी भूख और तकलीफ और ज्यादा हुई। तीसरे रोज भी जब खाना ना मिला तो उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा हुई और सब्र ना हो सका। खुदा की बारगाह में मुनाजात की कि पालने वाले, कबल इसके कि मेरी जान मेरे जिस्म से तू निकाले, मेरी रोजी तूने बंद कर दी। तो खुदा ने वही फरमाई कि ए इदरीस अलैहिस्सलाम, 3 रोज खाना ना मिलने से फरियाद करने लगे हो, लेकिन अपने शहर वालों की भूख और तकलीफ की 20 साल तक तुमको मुतलक परवाह नहीं हुई। मैंने तुमको बताया कि वो बहुत तकलीफों मुसीबत में मुब्तला हैं। मैंने उन पर रहम किया और मैंने ख्वाहिश की कि तुम बारिश की दुआ करो ताकि मैं उनके लिए पानी बरसाऊं, लेकिन तुमने दुआ करने से बुखल किया, इसलिए मैंने तुमको भूख का मजा चखाया जिससे तुमको सब्र ना हो सका और फरियाद करने लगे। अब इस गार से बाहर निकलो और अपनी रोजी तलाश करो। मैंने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है कि खुद अपनी रोजी की फिक्र करो। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे आए ताकि कहीं से कुछ खाने को मिले और भूख की तकलीफ दूर हो। शहर के करीब पहुँचे तो एक घर से धुआं निकलते हुए देखा।
वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक ज़ईफ़ा ने 2 रोटियां पकाई हैं और आग पर सेंक रही है। उससे फरमाया कि मुझे खाने को दो कि भूख से मेरे जिस्म में से ताकत खत्म हो रही है। उस औरत ने कहा, ऐ बंदा खुदा, इदरीस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ने हमारे पास इतना नहीं रहने दिया है कि किसी और को खिलाएं, और कसम खाई कि उन 2 रोटियों के सिवा कुछ और नहीं है। जाओ इस शहर के अलावा किसी और शहर में रोजी तलाश करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, इतनी रोटी तो दे दो कि मैं अपनी जान बचा लूं और मेरे पैरों में चलने की ताकत आ जाए। उसने कहा, यही 2 रोटियां हैं, एक मेरे लिए और एक मेरे बच्चे के वास्ते। अगर अपनी रोटी तुमको दे दूं तो खुद मरती हूं, और अगर अपने बच्चे के हिस्सा की दे दूं तो वो मर जाएगा, और कुछ नहीं है कि जो तुमको दूं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा लड़का छोटा है, उसके लिए आधी रोटी काफी होगी, आधी मेरे वास्ते काफी है, जिसके सबब जिंदा रह पाऊंगा। औरत ने अपने हिस्सा की रोटी खा ली और दूसरी रोटी इदरीस अलैहिस्सलाम और लड़के में तकसीम कर दी। लड़के ने जब देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्सा की रोटी में से खा रहे हैं तो रोने लगा और इस कदर मुस्तरब हुआ कि मर गया। औरत बोली कि ऐ शख्स, तूने मेरे बेटे को मार डाला। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबरा मत, मैं इसको खुदा के हुक्म से जिंदा किए देता हूँ। ये कहकर लड़के के दोनों बाजू अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोले कि ऐ रूह जो इस फर्जंद के जिस्म से निकल चुकी है, बहुक्म खुदा फिर इसके बदन में वापस आ जा। मैं इदरीस अलैहिस्सलाम हूँ, खुदा का पैगंबर। वो लड़का फौरन जिंदा हो गया। औरत ने जो ये देखा बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप इदरीस पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं, और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि शहर वालों मुबारक हो और तकलीफों मुसीबत से नजात की खुशखबरी हो कि इदरीस अलैहिस्सलाम तुम्हारे शहर में आ गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलकर उस जालिम बादशाह अव्वल के मुकाम पर पहुँचे जो एक टीला पर था। फिर उनके पास शहर वालों का एक गिरोह आया और कहा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, इस 20 साल में आपको हम पर रहम ना आया कि हम ऐसी तकलीफों मुसीबत में मुब्तला हैं और भूखे मर रहे हैं, लिहाजा दुआ कीजिए कि खुदा बारिश कर दे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त तक दुआ ना करूंगा जब तक ये तुम्हारा बादशाह जब्बार और तुम्हारे शहर वाले नंगे पैर और पैदल मेरे पास आकर इल्तिजा ना करें। जब बादशाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम का ये कलाम सुना तो 40 आदमियों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वो जब इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत अलैहिस्सलाम ने उन पर नफरीन की और वो सब मर गए। बादशाह ने जो ये माजरा सुना तो 500 आदमियों को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम से आकर कहा, हम इसलिए आए हैं कि आपको बादशाह के पास ले चलें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन 40 आदमियों को देखो जो तुमसे पहले मुझे ले जाने के लिए आए थे कि किस तरह मरे हुए पड़े हैं। अगर तुम लोग वापस ना जाओगे तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। उन्होंने कहा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, 20 साल से हमको भूख में मुबतला कर रखा है और अब हम पर नफरीन करते हो, तुम्हारे दिल में रहम नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस जब्बार के पास नहीं जाऊंगा और ना बारिश की दुआ करूंगा जब तक वो और तमाम शहर वाले प्यादा और नंगे पैर मेरे पास ना आएंगे। ये सुनकर वो लोग बादशाह के पास वापस गए और इदरीस अलैहिस्सलाम का कौल बयान किया और इल्तिजा की तो वो अहले शहर के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और सब ने खड़े होकर आजिज़ी से इल्तिजा की कि वो खुदा से बारिश की दुआ करें। इदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर किया और खुदा से दुआ की कि बारिश करे। उसी वक्त आसमान पर अबर आया, बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई और इस हद तक पानी बरसा कि उनको गर्क होने का गुमान हुआ और जल्द वो सब अपने अपने घरों को वापस चले गए।